Good evening, students. Welcome back to the YouTube channel of the CSR. Today we'll start with a new topic, the budget, because we have seen that every year, in UPSC, on an average 20 questions are asked from the economic sections, and out of those 20 questions, on an average 3 to 4 questions, they are directly or indirectly related to the budget session. So guys, this was the government's last budget of the session, so we will call basically it interim budget. So in this slide, I will give you the basic ideas that what is budget and what are its basic key terms, and then we'll have a the basic idea about the number and their games, and why this budget is important. What is the global context of this budget this time? Because see, when the world is facing we have seen that there is a rethinking of the globalization, when there is a fragmentation in the global supply chain order, and what are the global context of this this budget, because we see that the world is facing high inflation, and there is a low GDP growth rate all around the world. We are seeing that all the major powers of the world are in the low debit. If you see that the entire globe's GDP is $92 trillion, and the debt on the governments is roughly around $87 to $88 trillion. So we will see that what is the important context in that scenario. After that, every budget has directly related to the 4 F's. What are those 4 F's? That is food, fuel, fertilizer, and finances. Basically, the budget revolves around these 4 F only. So we'll discuss it on. Right. Before going further, now we'll start what is the union budget means. See, according to Article 112, the Indian Constitution, union budget is basically an annual financial statement that from government, from where they are getting their receipts and where they are going to expend that receipts. Right. Basically, the budget is an annual financial statement under Article 112. Now, when I'm saying that this was not a proper budget, this was called interim budget. What is interim budget? When the government is, when the current government is going and the last session of the budget, that is known as the interim budget. Now, and the basic idea behind the interim budget is, in interim budget, we will not see the major changes in the policies or the major changes in the tax rates and all, right? So an interim budget is presented by the government that is going through a transition period or in its last year of office ahead of the general elections. We have seen that the government has announced that from 19th of April, there will be elections, right? So this budget is known as interim budget. The purpose of interim budget is to ensure the continuity of the government and its expenditure and its policy, so that till the new government doesn't come into the office, by these receipt and these expenditure slips, they can run their business, right? और ये बजट इस बार इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज गवर्नमेंट ने आइडिया दिया है विकसित भारत का, राइट? अमृतकाल, पंचप्राण और ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे. फिर उसके बाद में व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द what is the basic difference between the interim budget and the vote on account, right? So when we say interim budget, that comes under the Article 112. Purpose क्या है? Financial statement presented by the government ahead of the general election. से पहले जो बजट आता है उसको interim budget बोलते हैं. ड्यूरेशन ऑफ एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये कुछ महीनों के लिए, जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है, नई सरकार नहीं बनती है, तब तक जो एक्सपेंसेस चलाने के लिए सरकार को चाहिए होता है, उस बजट को कहते हैं इंटरिम बजट. पॉलिसी, ज्यादा पॉलिसी चेंजेस या टैक्स चेंजेस इसमें नहीं होते हैं. इंपैक्ट ऑन गवर्नेंस, प्रोवाइड द कंटिन्यूटी इन द गवर्नेंस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन द 2 गवर्नमेंट्स. व्हाट माय पॉइंट? 2 गवर्नमेंट्स के बीच में जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, उस दौरान जो बजट लाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरिम बजट. वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? वोट ऑन अकाउंट आर्टिकल 116 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है. पर्पस क्या होता है? टू मीट द एसेंशियल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स फॉर लिमिटेड पीरियड अंटिल द बजट इज अप्रूव्ड. जब तक बजट अप्रूव नहीं हो जाता, उस दौरान के लिए भी गवर्नमेंट को कुछ अमाउंट चाहिए होता है, एक्सपेंडिचर चाहिए होता है, ताकि वो अपने डेली एक्सपेंसेस को या डेली ऑफिस वर्किंग के लिए जो चीजें चाहिए उसके काम कर सके.
फॉर दैट दे ब्रिंग द वोट ऑन अकाउंट. आफ्टर दैट ड्यूरेशन ऑफ एक्सपेंडिचर कितना होता है? इट इज जनरली ग्रांटेड फॉर द 2 months, 2 महीने के लिए मिलता है, और जितना बजट होता है उसका 1/6 इनको मिलता है सिर्फ. गॉट माई पॉइंट? दे कैनॉट चेंज द टैक्स रिजीम अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. वोट ऑन अकाउंट जो होता है वो बेसिकली मैंने आपको बताया सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है, 2 महीने के लिए, तो ऑब्वियसली दे कैनॉट चेंज द टैक्स पॉलिसीज. ये इंश्योर करता है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट को, राइट. फिर उसके बाद में हम देखेंगे ये कुछ. अब नाउ विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक key terms which will be basically we used to see in economics and as well as the budget. These important economic key terms are very important from the budget point of view, right? Now number one is annual financial statement. I already told you annual financial statement directly you can call budget only. And acha guys, now UPSC can ask you which department of the finance ministry prepares the budget. At the end of the video I'll tell you. Now you have to, if you know, you can comment in the comment section that which ministry makes the budget, and suppose Ministry of Finance makes the budget, and of this Ministry of Finance, which particularly department makes this question has already been asked in UPSC, I think probably in 2019 and 2020, I guess, right? Now annual financial statement, it encompasses the receipt and the expenditure of the Indian government, the information of the Consolidated Fund of India, Contingency Fund, and the public account. Right now, you can read all these about that. What is Contingency Fund? What is Consolidated Fund of India? Article 267. Right. This is all about the polity. You can go and you can learn about all these things in detail. Here we will, will stuck to the economic sections only. Right. Now the revenue receipt and the revenue expenditures. Now, what are the revenue receipts? From the where the government gets the amount, right? This is called the revenue receipts. And when the government expend that amount, that is called the revenue expenditure. Now what are the components which comes under the revenue receipts? See, it comprises the income amassed by the government through the taxes, non-taxes sources like interest and dividends on its investment. Means revenue receipt में taxes and non-taxes जो इनकम होगी उसको दोनों को काउंट करते हैं. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है? दैट एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट फॉर द पर्पस अदर देन द क्रिएशन ऑफ द फिजिकल फाइनेंशियल एसेट्स. जो जैसे हम किसी को सैलरी दे रहे हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. दैट विल नॉट काउंट इनटू द कैपेक्स. व्हाट वी कॉल दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. वो मैं आगे आपको बताऊंगा. जो भी अमाउंट यूज होता है अदर देन क्रिएटिंग फॉर द फिजिकल एसेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. गॉट माय पॉइंट? इट इंक्लूड्स दोज एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द यूजुअल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट्स, इंटरेस्ट पेमेंट, डेबिट यूनियन गवर्नमेंट. मतलब स्टेट्स को या यूनियन गवर्नमेंट को या यूनियन टेरिटरी को जो भी हम अमाउंट सैंक्शन करते हैं अदर देन दैट मनी which is creating the physical assets or infrastructure, that is known as the revenue expenditure. Now what is capital receipt and the capital expenditure? See, capital receipts which generate liability or decrease the financial assets of the government. It includes borrowing from the Reserve Bank of India, commercial bank, and other financial institutions. Capital receipts means when the government is borrowing either from Reserve Bank of India, either from from the commercial bank or other financial institutions. Basically, this is negative in connotation. This capital receipt. When as far as concerned about the capital expenditure, spending incurred by the government which results in the formation of the physical and financial positions of the union government or decrease in the financial liabilities. Just example, what are the important components of the capital expenditure is, when you expand on the land, equipment, infrastructure, railways, roadways, ठीक है, हॉस्पिटल बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, उसको हम बोलेंगे कैपिटल एसेट्स, राइट. तो वो जो कैपिटल एसेट को अमाउंट जो बनाने में खर्च होता है दैट इज नोन एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर. जब आप कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं पब्लिक गुड के लिए, वो जो अमाउंट खर्च करते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. गॉट माय पॉइंट? फिर उसके बाद हम देखते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स जो होता है, टैक्स ऑन द कंपनीज हम लगाते हैं. डायरेक्ट टैक्स जो इनकम के ऊपर लगता है या किसी इंडिविजुअल की इनकम के ऊपर लगता है,
ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है द टैक्स विच आर इम्पोज्ड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, इट कंप्राइजेस टैक्स लाइक सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स, कस्टम। जैसे जीएसटी है, जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। इनकम टैक्स होता है, उसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी जो होता है द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, फिस्कल पॉलिसी बाय द मींस बाय व्हिच गवर्नमेंट एडजस्ट इट्स एक्सपेंडिचर लेवल टैक्स रेट्स टू मॉनिटर इन्फ्लुएंस द कंट्रीज इकोनॉमी। जब सरकार जो है वो एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू को कम या बढ़ाती है या टैक्स रेट को कम या बढ़ाती है देश की इकोनॉमिक स्थिति को जानने के लिए, उस पॉलिसी को हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिर रेवेन्यू डेफिसिट कब होता है, जब एडिशनल एक्सपेंडिचर हो जाता है गवर्नमेंट का ओवर द रेवेन्यू रेसिप्ट्स। मान लीजिए रेवेन्यू रेसिप्ट तो है एग्जांपल 100, ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया 200, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट बोलेंगे। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स टोटल रेसिप्ट्स नॉट इंक्लूड द बोरोइंग। मतलब जब सरकार एक्सपेंडिचर ज्यादा कर देती है एज और उसके पास टोटल रेसिप्ट, जैसे मान लीजिए सरकार का टोटल रेसिप्ट है 1 लाख करोड़ और खर्चा कर दिया 3 लाख करोड़, तो जो टोटल फिस्कल डेफिसिट हो गया वो 2 लाख करोड़ का हो गया। अब इस फिस्कल डेफिसिट के अंदर जो हम बोरोइंग बाहर से अगर पैसा ले रहे हैं कहीं से तो वो पैसा इंक्लूड नहीं करेंगे फिस्कल डेफिसिट। फिर उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट हम देखते हैं, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, जहां से हमको इंटरेस्ट आता है, कहीं मान लीजिए हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वहां से ब्याज आ रहा है, तो वो पैसा को हम डेफिसिट में काउंट नहीं करते, उसको माइनस कर देंगे फिस्कल डेफिसिट से, इसीलिए उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। ये बेसिकली सरकार के वित्तीय घाटे को कम करके दिखाने की एक नई टेक्निक थी, पीछे नंबर इसको 2009-10 के आसपास इसको लेके आए थे। ये फिर नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं, ये जीडीपी होती है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विस मेड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड। सो बेसिकली ये सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक की टर्म्स हैं जो कि आपको बजट चैप्टर पढ़ने से पहले आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखिए बजट पे आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात यह है कि पैसा आता कहां से है और फिर हम लोग खर्च कहां करते हैं उसको, ठीक है। ये आप ग्राफ इसको गौर से आप देखिए, और ये आपको नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोटा मोटी आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन से सेगमेंट में कहां हम कितना खर्च कर रहे हैं और कहां से जो है देयर इज अ सोर्स ऑफ मनी। गाइस, नंबर 1 वी कैन सी दैट वेयर फ्रॉम रूपी कम्स बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। व्हेन वी सी बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, 28% of the amount is coming from the borrowing and other liabilities. Got my point? उसके बाद हम सबसे ज्यादा देख रहे हैं इनकम टैक्स से पैसा आता है। नंबर 1 इज बोरोइंग एंड लाइबिलिटी। फिर उसके बाद इनकम टैक्स से सरकार के पास, ये दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू रिसिप्ट्स, सरकार के पास पैसा कहां से आता है, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज बाहर से लेना है, ठीक है, 28%, इनकम टैक्स 19%, फिर उसके बाद जीएसटी और जो अदर टैक्सेस होते हैं उनसे 18%, कॉर्पोरेशन टैक्स से 17%, जो बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर हम टैक्स लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नॉन टैक्स रेसिप्ट्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यूनियन एक्साइज ड्यूटी, जो अलग अलग स्टाम्प पे ड्यूटी लगती है, बॉन्ड्स पे ड्यूटी लगती है, ठीक है, अलग अलग। फिर जो एयरपोर्ट के ऊपर आप देखते हो कस्टम ड्यूटी लगती है, ये। फिर नॉन डेबिट कैपिटल रेसिप्ट्स, ठीक है। तो ये सारा रुपया जो है भारत सरकार के पास यहां से आता है। गॉट माय पॉइंट? मतलब अगर 100 रुपए है तो उसमें से 28 रुपए हम बाहर से ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 19 रुपए इनकम टैक्स से आ रहे हैं, 18 रुपए जीएसटी से आ रहे हैं। तो ये सारा इसको बाइफोर्केट करके हमने बताया है। फिर उसके बाद हम देखेंगे ये आप इसको, ये जाता खर्च हम लोग कहां करते हैं, ठीक है, खर्च हम लोग कहां करते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, इंटरेस्ट पेमेंट पे जहां ब्याज हमें देना होता है 20% हम वहां कर रहे हैं। फिर 2 टाइप की स्कीम होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, 8% ऑन दैट एंड 16% ऑन दैट। डिफेंस के ऊपर टोटल बजट का 8% हम खर्च कर रहे हैं। सब्सिडीज जो गवर्नमेंट अलग अलग सब्सिडीज देती है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें हम 6% पैसा खर्च करते हैं। फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर्स के लिए 8% रखा है। जितना पैसा होता है उसमें से स्टेट का जो शेयर होता है टैक्सेस और ड्यूटीज, उसको 20% जाता है। अदर एक्सपेंडिचर्स जो मिसलिनियस एक्सपेंडिचर होते हैं 9%, और पेंशन जो है 4%। धीरे धीरे आप देखोगे 5-10 साल बाद में पेंशन का जो सेक्शन है वो और कम होता जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2004 के बाद में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को जो है पेंशन देना बंद कर दिया है। तो उसके बाद आप देखोगे ये 4% धीरे धीरे 5-10 ईयर्स के अंदर और थोड़ा थोड़ा
कम होगा। सो गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। ऑल्दो दिस डायग्राम्स ऑल आर अवेलेबल ऑन द PIB वेबसाइट, ठीक है। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर दैट वेयर रूपी कम्स एंड फ्रॉम वेयर रूपी गोज, राइट। फिर उसके बाद हम देखेंगे इस बार सरकार का जो फोकस एरिया क्या था बजट का। जब हम बात कर रहे हैं अमृत काल की बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि विकसित भारत 2047 तक उनको एक जो है वो एक अलग इंडिया हिंदुस्तान की कल्पना करते हैं। तो उस विकसित भारत के जो मेजर 4 पिलर हैं, वो 4 पिलर क्या है? बेसिकली यू कैन कॉल दैट पिलर ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। देखो, गरीब कल्याण देश का, गरीब का कल्याण देश का कल्याण, देन empowering the youth, and then the farmers and their welfare, and the nari shakti, this is called women empowerment. So these are the 4 major important pillars of the viksit bharat. विकसित भारत का 4 मेजर पिलर्स क्या हैं? गरीब का कल्याण, empowering the youth, and welfare of the farmer अन्नदाता, and the नारी शक्ति। द एम क्या है इस बार के बजट का? that the विकसित भारत by 2047 prosperous भारत in harmony with the nature, modern infrastructure and opportunities for all। जहां पे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जहां सबके लिए अपॉर्चुनिटीज हो, हर वर्ग के लिए, पुअर के लिए हो, यूथ के लिए हो। जब हम देखते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड हिंदुस्तान का इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे मजबूत है, तो क्यों ना हम उस यूथ से जो है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे या हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में हम हमारे यूथ को जो है वो यूटिलाइज करें। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है वेलफेयर ऑफ द फार्मर। आज भी देश का जो मोस्ट ऑफ द आई मीन द पॉपुलेशन दैट इज डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग और द प्राइमरी सेक्टर। फिर उसके बाद में देश की 50% आबादी दैट इज अ वुमेन, सो यू कैन नॉट इग्नोर दैट पार्ट ऑफ दैट वुमेन एम्पावरमेंट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स गाइस। फिर उसके बाद हम देखते हैं डेवलपमेंट मंत्रा क्या है? दिस इज सबका साथ सबका विकास, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल, मतलब सबका साथ मीन्स यू हैव टू टेक एवरीबॉडी। गरीब को ले लिया, युवा को ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद नारी को ले लिया, हर वर्ग को जब हम साथ लेते हैं, सबका साथ। फिर सबका विकास मीन्स ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट। फिर उसके बाद नया जुड़ गया सबका साथ सबका विश्वास, विकास एंड सबका विश्वास मीन्स वी हैव टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, right, and each and every component. Then the trinity of the demographic democracy and diversity backed by सबका प्रयास। You can use, देखो prosperous इंडिया की जब हम बात करते हैं, विकसित भारत की जब हम बात करते हैं 2047 के अंदर, तो that would be not possible जब तक आप जो है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और अब नया जुड़ गए सबका प्रयास। So these important, these all are important development mantras, right? And then we'll talk about the people-centric inclusive development. There is a substantial development of all form of infrastructure, physical, digital, social. अब आप देखते हो कि physical infrastructure पे हमने काम किया, digital इंडिया पे हमने काम किया। आज भारत के अंदर जो है UPI से लोग जो है पेमेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं। DBT हुआ, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर हुआ। फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, प्रोमोटेड द फॉर्मलाइजेशन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। फिर उसके बाद GST का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। फिर हम गुजरात में गिफ्ट सिटी बना रहे हैं, ठीक है, सिंगापुर की तर्ज के ऊपर, जैसे जिससे कि दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज हमारे यहाँ आके सेटअप करें और हमारे युवाओं को जॉब मिले, ठीक है। तो ये सारे पीपल सेंट्रिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की एक पहल है। फिर प्रोएक्टिव इन्फ्लेशन मैनेजमेंट। अब अगर इफ यू कंपेयर कि भारत के अंदर जो एक इन्फ्लेशन का बैंड है वो हमेशा रहता है 4 ± 2, ठीक है। यूएस का यूएस का तो ±2 है, लेकिन वहाँ इन्फ्लेशन 10% के आसपास रहता है, ठीक है। हमारा इन्फ्लेशन जो है वो रफली अराउंड 6 to 8% के आसपास झूलता है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज इंडिया इज डूइंग बेटर फ्रॉम द अदर वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक कंट्रीज, राइट। लेकिन अभी इस बार के बजट के आने के बाद मैं आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगा, एक चीज तो श्योर हो गई कि हमारी देश की जो ग्लोबल जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है या आप जिसे ग्रोथ रेट कहते हैं, वो ऑन एन एवरेज 7% के आसपास ही काफी लंबे समय से जो झूल रही है। तो इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं दैट 7% ग्रोथ रेट इज इंडिया फॉर इंडिया इज अ न्यू नॉर्मल, राइट। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फोकस एरियाज। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फोकस एरियाज?
जो हमने बात की थी, जिस ज्ञान की हमने बात की थी, जिसके अंदर गरीब है, युवा है, अन्नदाता है, ठीक है, और जिसके अंदर नारी शक्ति की बात कर रही हैं, तो हमने गरीब के लिए क्या काम किया, हमने डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर दिया है, हमने डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर दिया है, जिससे कि 2.7 लाख करोड़ सरकार के से हुए, 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, राइट। क्रेडिट असिस्टेंट टू द 78 लाख स्ट्रीट वेंडर, पीएम स्वनिधि प्रोग्राम के तहत, स्वनिधि में जितने भी लगभग सरकार ने कोशिश की कि लगभग 50 लाख लोगों को जो है हमने 10,000 रुपए, जो कोविड-19 से जो हमारे डेली स्ट्रीट वेंडर्स थे, जो परेशान हो गए थे या जिनकी जॉब लॉसेस हो गई थी, जिनकी आम रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो रेडी पटरी वाले जितने भी लोग होते हैं, उनको इस स्कीम के माध्यम से 50 लाख लोगों को 10,000 रुपए जो है डायरेक्टली बेनिफिशियरी ट्रांसफर उनको दिया गया। फिर यूथ के लिए हमने जो स्किल इंडिया मिशन चलाया, जिसमें लगभग 1.4 करोड़ लोगों को ट्रेन किया है, ठीक है। फॉस्टरिंग द एंटरप्रेन्योरियल एस्पिरेशंस यूथ, 43 करोड़ लोगों के लिए लोन सैंक्शंस हुआ है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। फिर वेलफेयर अन्नदाता के लिए हमने डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है 11.8 करोड़ अंडर द पीएम किसान योजना। देन वी हैव डन द क्रॉप इंश्योरेंस टू 4 करोड़ फार्मर अंडर पीएम फसल बीमा योजना। इंटीग्रेशन ऑफ द 361 जो मंडीज हैं जो ई नाम के तहत आती हैं, उनको जो है हमने 3 लाख करोड़ रुपए का जो है अमाउंट दिया है ताकि दे कैन डेवलप। गाइस सी, हर बार के बजट में कुछ ना कुछ स्कीम्स होती हैं विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो कुल मिला के इस बार के बजट में जो मैंने देखा लगभग 30 स्कीम के आसपास हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल रहता है कि सर हम लोग जो है कौन सी स्कीम पढ़ें। तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, पुरानी स्कीम देखो, हर मिनिस्ट्री की बहुत सारी स्कीम ऐसे 200 स्कीम्स हो जाती हैं, तो इतनों को याद रख पाना इज वेरी टफ। तो जितनी भी स्कीम्स बजट में होती हैं, उन स्कीम्स के आप ऊपर एक बार थोड़ा सा नजर मार लीजिए। मैक्सिमम चांस होता है कि वहीं से सवाल जो है आ जाए, ठीक है। अदरवाइज इट्स वेरी टफ टू mug up all 200 schemes and practically, because we see there are a lot of subjects, economy is there, history is there, geography is there, environment is there, and lot of stuff is there. So how much things you will going to remember? So the best way is जो बजट में स्कीम्स हैं आप सिर्फ वो पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद नारी शक्ति की, जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ हम बात ही नहीं करते हैं, हम देखेंगे कि 30 करोड़ मुद्रा योजना का लोन दिया गया है, ठीक है। फिर इंक्रीज किया है हायर एजुकेशन में 28% तक जो महिलाएं हैं जिनका एनरोलमेंट हुआ है हायर एजुकेशन में। 43% ऑफ द फीमेल एनरोलमेंट हुआ है स्टीम कोर्सेज के अंदर। और जो हम लखपति दीदीज की बात करते हैं, 1 करोड़ वुमेन जो कि असिस्ट करेंगी 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लखपति दीदीज आप थोड़ा सा देख लीजिए। फिर अभी जब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज फॉर द अमृत काल, अमृत काल के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज क्या हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो कमिटमेंट है नॉन जीरो नेट जीरो बाय 2070 कि हम लोग जीरो एमिशंस रिलीज करेंगे एनवायरनमेंट में बाय द 2070, ठीक है। उसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की जरूरत है। फिर हम लोग जो सोलर एनर्जी के ऊपर हमारा ध्यान है, उसको रूफटॉप सोलराइजेशन के लिए 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को हमने इनेबल किया है कि 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ, ठीक है, दे कैन यूज दैट। फिर फेस्ड मैंडेटरी ब्लेंडिंग ऑफ सीएनजी, पीएनजी एंड कंप्रेस्ड बायोगैस। फिर उसके बाद हम नई स्कीम्स लेके आ रहे हैं बायो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बायो फाउंड्री टू बी लॉन्च्ड टू सपोर्ट एनवायरनमेंट एंड देयर फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स, ठीक है। कोल गैसिफिकेशन की बात करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद स्ट्रैटेजी क्या है अमृतकाल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए। पीएम गति शक्ति की हम बात कर रहे हैं, जो 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम बना रहे हैं गति शक्ति के अंदर टू इंप्रूव द लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एंड ताकि कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाए। फिर उसके बाद हम गाइस विल सी नाउ दीज आर द इंपॉर्टेंट यू कैन सी दीज आर द हेल्थ सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर में हमने क्या काम किया। स्ट्रेटेजी फॉर द अमृतकाल इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। बेसिकली नाउ दिस इज the theoretical portion. I will only talk about the datas and all, right? ठीक है, you can take the screenshot of this page, right? टूरिज्म में क्या क्या काम किया, G20 में हमने इस बार पूरे जितने भी लोग आए थे सबको घुमाया अच्छे से, नहीं। लक्षद्वीप बड़ा ट्रेंड में अभी रहा। फिर एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग के लिए हमने क्या क्या काम किया,
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हम बहुत जल्द 3 करोड़ जो टारगेट है उनको अचीव करने के लिए हैं, बहुत नज़दीक है। और फिर उसके अलावा 2 करोड़ और पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ हाउस होल्ड और बनाने का हमने जो है वो एक प्रॉमिस किया है। ये कुछ टैक्स रिफॉर्म्स हैं। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन मोर देन ट्रिपल्ड इन द लास्ट 10 years गाइस। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो पिछले 10 साल में लगभग 3 गुना बढ़ गया है। नंबर ऑफ द रिटर्न फाइलर्स 2.4 टाइम्स। फास्ट रिफंड्स जो पहले 2013-14 के आसपास तक लगभग 93 दिन लग जाते थे आईटीआर भर के पैसा वापस मिलने में, वो अभी 10 दिन के अंदर हो रहा है। ठीक है। फिर टैक्स प्रपोजल्स हैं, कंटिन्यूटी इन द टैक्सेशन, रिटेंशन ऑफ द सेम टैक्स रेट्स। कॉर्पोरेट टैक्स को 22% के आसपास रखा गया है, 15% फॉर द न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। तो ऑन एन एवरेज टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर इस बजट में, इंटरिम बजट में ज्यादा चेंजेस नहीं किए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटरिम बजट का जो बेसिक एजेंडा होता है वो जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आ जाती है, जो एक जो टाइम पीरियड रहता है दो नई गवर्नमेंट्स के बीच में, उस टाइम पीरियड में कैसे जो पॉलिसी का कंटिन्यूएशन रहे उसके लिए वो बजट आता है। ज्यादा मेजर रिफॉर्म्स आपको कभी भी इंटरिम बजट में देखने को नहीं मिलेंगे। गॉट माय पॉइंट। फिर उसके बाद में ये कुछ इंप्रेसिव नंबर्स हैं, ये आपको नंबर्स याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑल्दो मैं आपको बता देता हूं। रेवेन्यू रिसिप्ट जो है हमारा कितना है ये आप देख लीजिए। कैपिटल रिसिप्ट कितना है, इसमें सारी चीजें हैं, सारे डाटाज हैं। कैपिटल रिसिप्ट कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, फिस्कल डेफिसिट कितना है। सो नंबर इज इन नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट गाइज जो इसमें चीज है वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। A corpus rupees of 1 lakh crore will be established with a 50-year interest free loan for the youth। ठीक है। 1 लाख करोड़ रुपए का एक कॉर्पस बनाया जाएगा 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री, यूथ को पैसा देने के लिए कि कैसे वो लोग जो है नए नए स्टार्टअप्स या यूथ इंडिया या स्किल इंडिया इस तरह के प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। फिर उसके बाद में बेसिकली इसको आप जो है वो कैपेक्स के अंदर काउंट कर सकते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर उसके बाद में हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट इज वर्किंग विद एन अप्रोच टू डेवलप दैट इज ऑल राउंड, ऑल प्रिजर्व, ऑल इंक्लूसिव। सो मतलब जिसको सबका साथ सबका विकास कहते हैं। ठीक है। एक गवर्नमेंट की अप्रोच है कि सबको ऑल अराउंड, ऑल प्रोग्रेसिव एंड ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। फिर द बजट कंटेन्स द नंबर ऑफ अनाउंसमेंट्स एंड द स्ट्रैटेजीज इंडिकेटिंग डायरेक्शन। मैंने आपको बताया था विकसित भारत के 4 पिलर्स हैं, पीछे भी बताया था। ठीक है। फिर उसके बाद नो चेंज इन द प्रपोज्ड ऑफ द टैक्स रेट। इंटरिम बजट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि टैक्स रेट के अंदर कोई ज्यादा चेंजेस हुआ नहीं है। ठीक है। तो ये कैसे हम लोग जो है अब शिफ्ट करने जा रहे हैं अमृत काल से लेके कर्तव्य काल की तरफ, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब अमृत काल से जब कर्तव्य काल की तरफ हम जा रहे हैं तो उसमें मैं आपको बताया कि हमारा टारगेट है 2070 तक नेट जीरो हम लोग जो है एमिशन कंट्री बन जाएं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि सेटिंग गोल कोल गैसिफिकेशन के लिए हमने 100 मिलियन टन 2030 तक की हमारा जो है वो प्रोग्राम है। 1.3 LED स्ट्रीट लाइट्स विल बी इंस्टॉल्ड। ठीक है। ब्लू इकोनॉमी 2 स्कीम विल बी लॉन्च टू रिस्टोर द एडप्ट कोस्टल एक्वाकल्चर एंड मैरीकल्चर। ठीक है। फिर हमने ये सोलराइजेशन वाला रूफटॉप वाला किया कि हम लोग इतना लोगों को एम्पावर कर दें कि वो घर के ऊपर जो है अपना सोलर रूफटॉप कर कि इतनी बिजली पैदा करें कि 300 यूनिट उन्हीं को फ्री मिल जाएगा। गॉट माय पॉइंट। फिर उसके बाद हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, हेल्थ केयर पे भी गवर्नमेंट ने खूब काम किया है। राइट नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग विल डिस्कस इज ट्रेंड क्या रहा है। बेसिकली हर बार सवाल ट्रेंड से, हर बार आप देखिए कि यूपीएससी में हमेशा जो सवाल है वो ट्रेंड से हर बार आता है। फिस्कल डेफिसिट गाइस हमारा 2023-24 में जो था वो 5.8 था, 2024-25 में 5.1 हुआ है, तो थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन अगर यूसी की लगातार 5 साल कम हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है, तो वो आप इसको थोड़ा सा एक बार देख लेना, क्योंकि ट्रेंड यूपीएससी हमेशा ट्रेंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि फिस्कल डेफिसिट जो है फ्रॉम द लास्ट कंटिन्यूअस 5 years इज कंटिन्यूअस टुवर्ड्स द डिक्लाइनिंग स्टेज। ठीक है। तो वो हमेशा अप एंड डाउन चलता रहा है। फिर रेवेन्यू डेफिसिट पहले हमारा 2.8% ऑफ द जीडीपी था, अभी 2 है, ये कम हुआ है नो डाउट। प्राइमरी डेफिसिट मैंने आपको बताया, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यही होता है। ठीक है। वो 2.3 से 1.5 आया।
टैक्स तो ये नंबर्स तो इंप्रेसिव है, आप हमारी इकोनॉमी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डेबिट जो है 57.8 से लेके 56.8 पे है। टैक्स रेवेन्यू कितना है 11.6 से 11.7% है। ट्रेंड्स इन द टैक्स रेसिप्ट वी विल सी द बजट एस्टिमेट फॉर द फिस्कल ईयर 2024 इंडिकेट द वेल बैलेंस्ड अप्रोच। The total receipts other than borrowings and the total expenditure estimated 30.80 lakhs crore and 47.6 lakh crore respectively. The tax receipts are anticipated to reach 26 lakh crore, showcasing a pragmatic fiscal framework. Got my point? फिर उसके बाद में now we'll see the resilient India. That how India is performing. So guys, basically we are seeing that India's growth rate is on an average around roughly around 7% only, right? Now we'll see some important diagrams. एलोकेशन टू द मेजर स्कीम्स। अब मनरेगा जो कि गेम चेंजर एक स्कीम रही है हमेशा से केंद्र सरकार की, उसमें हमने देखा है कि 2023-24 में इन लोगों ने इसके लिए 60,000 करोड़ का बजट रखा। इस बार 86,000 करोड़ का बजट है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स में 4,645 करोड़ का बजट था, इस बार 6200 करोड़ का बजट रखा है। ठीक है। मॉडिफाइड प्रोग्राम और आयुष्मान भारत के लिए पहले 7200 करोड़ का बजट था, इस बार 300 करोड़ बढ़ा है, 7500 करोड़ का बजट है। ठीक है, तो हर चीज में बढ़ा है। फिर नेशनल ग्रीन हाइड्रो मिशन में पहले जो बजट था दैट वाज 297 करोड़, इस बार गवर्नमेंट कितना उसको प्रायोरिटी पे ले रही है आप देखिए, ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज डबल्स द बजट, राइट, 600 करोड़ का। So when we talk about that India is working towards the net zero carbon emission, we are not only talking, you can see that in our budget as well, right? When we talk about solar power grid, you see our budget was in 2023 to 2024 was 4,970 crores. Now the budget is almost 1.5 times, that is 8,500 crores, right? So these are the important allocations of the major schemes, right? फिर उसके बाद हम देखते हैं कि what we have given to the specific ministries. So Ministry of Defense, guys, they have got 6.2 crores of the budget, and I told you in the first or the second page of this PDF that on defense we roughly expend 8% of the total GDP. So out of our total 30 lakh crores budget जितना भी है उसमें 6.2 लाख करोड़ रुपए हमने डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के लिए 2.7.8 लाख करोड़ रखा है। रेलवेज के लिए 2,55,000 करोड़ का बजट रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2,13,000 बजट रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए हमने बजट रखा है 2 लाख। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 1,77,000। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर 1.68। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन 1.37, and the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, this is very low. This makes me sad because this should be the main priority of in every government, but you see the science and tech and research and development and agriculture, which are the most important segments for a government. The government has keep in the budget, in fact the less than the Ministry of Communication, that is 1,27,000 crores, right? Now we will see the India's economic maintaining the robust macroeconomic fundamentals. Now this is very important, guys. That India's real GDP projected 7.3% for the financial year 2023 to 2024. So I've already told you that for India the growth rate is on an average new normal 7%. Fiscal deficit has to be reduced below 4.5% by 2025 to 2026. Means we have to reduce below the 4.5 that fiscal deficit. Now one of the most important about this interim budget, a very impressive point in this entire interim budget, that the government has planned
for the capital expenditure for the next year increased by 11.11% to 11,11,11 crores. Guys, this is a very impressive number, that the capital expenditure for the upcoming years will be 11,11,11 crores. Now the allocation of the 1.3 lakh crore in the year 2023 to 2024 towards the 50-year interest-free loans to the states to boost the capital expenditure, I've already discussed. Now these are the important for our commitment towards the green energy and moving towards the commitment of the net zero by 2070, that the viability we have already discussed, right, these points. Now what are the strategies of the Amrit Kal? न्यू स्कीम फॉर द बायो मैन्युफैक्चरिंग. नाउ अमृत काल का जो फाउंडेशन पिलर, गाइस मैंने आपको बताया था, फाउंडेशन पिलर क्या था? ज्ञान, दैट इज गरीब, दैट इज पुअर, युवा दैट इज यूथ, अन्नदाता दैट इज फार्मर्स, एंड नारी दैट इज वुमेन. प्राइम मिनिस्टर हैज आल्सो सेड दैट हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ यही 4 कास्ट हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी. ठीक है. फिर उसकी जब हम बात करते हैं एडॉप्टेशन ऑफ द ई बसेस फॉर द पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, हम दिल्ली में देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो डीजल और पेट्रोल बसेस को बंद कर रही है. धीरे धीरे वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक बसेस. सो दिस इज आवर दिस शोज आवर कमिटमेंट टुवर्ड्स द नेट जीरो एमिशंस program 2070. And we have we have a new scheme for the bio manufacturing and bio foundry launched to support the environment friendly alternatives. फिर उसके बाद non-fossil fuels installed electricity capacity increased from 32.3% in 2014 to 43%. We have seen that on an average lump sum 10% of the growth in the capacity of electricity development from the sources of non-fossil fuels, right? And then there is a rise in the female labor force participation rate. 2017 to 2018, this number was 23.3% of the women, they were participating in the female labor force. Now the number has increased up to 14 to 15%, and the number goes up to 37%. This is a very impressive number. These diagrams you should learn, and they are very important, right? And and the last we'll see what is the blue economy. The minister announced the promoting climate resilient activities for the blue economy 2.A scheme, restoration adaptation measures, coastal aquaculture, mariculture, integrated with a multi-sectoral approach will be launched. Focus on a more comprehensive GDP, governance, development and performance. Transparent, accountable. सबसे important बात है that the government want to make its governance on the basis of transparency, accountability, people-centric approach, trust-based administration, macroeconomic stability, all-around development. जो macroeconomic stability की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं जो important schemes हैं, आयुष्मान स्कीम है, जब हम गरीबों के लिए जो पीएम आवास योजना, मनरेगा, इस तरह की जो स्कीम्स हम जो लास्ट व्यक्ति है, जो पंक्ति के, जिसमें हिंदी में कहते हैं कि पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति के लिए जब हम सरकार काम करती है, तो उसको बेसिकली हम कहते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेक्टर्स. जब प्रधानमंत्री बात करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सो दिस इज ऑल वी इनकम्पासेस इन दैट. इंक्रीजिंग एवरेज रियल इनकम, कैसे हम इंक्रीज करें एवरेज रियल इनकम को, एम्पावरमेंट. जो इस बजट में मुझे जो सबसे खास बात लगी, वेयर वी आर लैगिंग, सी वी आर डूइंग वेरी वेल इनफ इन द service sector, we are doing quite good in the primary sector or agriculture. Where the India has to work is on the manufacturing sector, right? So this, guys, this was all about the budget. If you want, we can come up with in a more in a detailed way. If you want, we can come up with economic survey as well. ठीक है, comment section में comment करके बताइए. Till then, thank you and take care.